Hello students and welcome. In the previous class of SST of class 8th, we were studying civics lesson 1, that is about the constitution and the need for laws. So we were understanding the terms given in the constitution, and we have understood or studied up to socialist term. So today we shall start from secular term. Secular means धर्मनिरपेक्ष. People in India follow different faiths like Hinduism, Buddhism, Jainism, Sikhism, Christianity and Islam. To maintain communal harmony and the unity of the country, the Indian Constitution has affirmed in the preamble that it is secular. The word secular implies four things. India is not a religious or theocratic state like Pakistan, Iran, Saudi Arabia, etc. It does not discriminate on the basis of religion. The state has no official religion of its own. All Indians have the freedom to profess, practice or propagate any religion which they deem fit to like. But at the same time, no individual or group is allowed to carry on communal propaganda or spread hatred and ill will among various communities. तो भारत के जो लोग हैं उनका अलग अलग विश्वास है, अलग अलग धर्मों में विश्वास है, अलग अलग रिलीजन को फॉलो करते हैं, जैसे हिंदू, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, सिखिज़्म, क्रिश्चियनिटी या इस्लाम। और ऐसे धार्मिक सद्भाव को मेंटेन करने के लिए और देश की एकता बनाने के लिए जो भारतीय संविधान है उसके प्रस्तावना में साफ साफ दर्शाया गया कि ये हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है। जो शब्द धर्मनिरपेक्ष उसके चार मतलब है कि भारत एक धार्मिक देश नहीं है जैसे कि पाकिस्तान, ईरान और सऊदी अरबिया हैं। हम लोग भारत को या भारत की सरकार को धर्म के आधार पर भेदभाव करने का कोई अधिकार नहीं है। किसी भी राज्य का या हमारे राज्य का कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है और जितने भी भारतीय हैं उन सभी को आज़ादी है कि वो कोई भी धर्म को फॉलो करें जो उन्हें सूट करता है। और साथ ही साथ इस बात पे भी हमारा संविधान ध्यान देता है कि किसी भी व्यक्ति विशेष या संगठन को या ग्रुप को इसकी इजाज़त नहीं है कि वो लोगों के बीच में धार्मिक प्रोपेगेंडा या फिर नफ़रत या फिर अपनी इच्छा अनुसार किसी धर्म को थोपने का कोई काम करे किसी भी संप्रदाय के ऊपर। नेक्स्ट टर्म है हमारा डेमोक्रेटिक, मतलब प्रजातांत्रिक। The word democratic signifies that the state derives its power from the people. The constitution confers on the citizens the right to elect their representatives for the union parliament, state legislature and the local bodies. All adult people of the country take part in elections which are held after every 5 years. The people can change a government if they are not satisfied it. तो जो शब्द प्रजातांत्रिक है उसका सीधा मतलब है कि जो राज्य है उसको उसकी शक्तियाँ उसके लोगों से मिलती हैं, प्रजा से मिलती हैं, जनता से मिलती हैं। संविधान है वो यहाँ के नागरिकों को ये अधिकार देता है कि वो अपने प्रतिनिधियों को चुने जो कि संघीय संसद में जो कि संघीय संसद या फिर राज्य विधायिका या फिर स्थानीय बॉडीज़ में जा कर के अपनी सरकार बनाए। जितने भी वयस्क लोग हैं हमारी कंट्री के उनको इलेक्शंस में पार्ट लेने का अधिकार है और हमारे देश में हर 5वें साल में इलेक्शंस हेल्ड होते हैं। जनता को अगर किसी सरकार का काम नहीं पसंद आ रहा है तो वो उसको हटा भी सकते हैं। रिपब्लिक मतलब गणतांत्रिक। A republic is a state where the head of the state president is popularly elected person for a definite and fixed period of time. It is opposed to monarchy where the king is a hereditary ruler. At the time of independence, India suffered from backwardness due to various. तो जो गणतांत्रिक शब्द है उसका मतलब है कि राज्य का जो मुखिया होता है, जो कि प्रेसिडेंट होता है, वो जनता के द्वारा चुना हुआ होगा और एक निश्चित समय के लिए निश्चित कार्यकाल होगा उसका। और ये पूरी तरह से जो राजशाही है उसके विपरीत है, जहाँ पे जो राजा राजशाही तंत्र में जो राजा होता था वो विरासत में उसको शासन मिलता था।
At the time of independence, India suffered from backwardness due to various socio-economic problems. For an all-round development of the country, it was considered essential to provide justice, liberty, equality, and fraternity to the people. These objectives were laid down in the preamble. आज़ादी के टाइम में भारत के लोगों को पिछड़ेपन का बहुत सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो सामाजिक आर्थिक दिक्कतें थीं उनकी वजह से, और इस वजह से हमारे देश के चौमुखी विकास के लिए ये प्रावधान किया गया कि सबको न्याय मिले, स्वतंत्रता मिले, समानता मिले और भाईचारा हो सभी के बीच में। और ये सब हमारे संविधान के प्रस्तावना में ये सब उद्देश्य दिए गए हैं। तो अब हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। जस्टिस मतलब न्याय। आवर सोसाइटी इज रिडन विद सोशल इनइक्वालिटीज। The caste system divides people into high and low caste. These differences led to many injustices. The poor and the low caste people are exploited and ill-treated by the rich and the high caste people. Our constitution seeks to remove such inequalities and to ensure social justice by providing various facilities to the weaker sections. The preamble declares that the people of India should enjoy social, economic and political justice. In accordance with these objectives, the government has adopted socialism as its ultimate goal. तो हमारा जो समाज है उसमें काफ़ी सामाजिक असमानता है। जो जाति व्यवस्था है उसने हमारे समाज को उच्च जाति और निम्न जाति में बांट रखा है। इस वजह से काफ़ी ज़्यादा अन्यायों का सामना करना पड़ता है लोगों को। जो गरीब और निचले तबके के लोग हैं, निचली जाति के लोग हैं, उनका बहुत ज़्यादा शोषण किया जाता है और उनसे बुरा व्यवहार किया जाता है अमीरों और उच्च जाति के लोगों द्वारा। तो हमारे संविधान ने ऐसी असमानता को हटाने का प्रावधान है और हमारा संविधान ये पक्का करता है कि जो वीकर सेक्शन है, कमज़ोर तबका है हमारे समाज का, उसको सामाजिक न्याय मिले। और ये सामाजिक न्याय उसको अलग अलग तरह की सुविधाएं दे करके दिया जाता है। हमारा संविधान की प्रस्तावना सीधे घोषणा करती है कि जो भारत के लोग हैं उनको सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिले। और इन ऑब्जेक्टिव्स के अलावा भी गवर्नमेंट के लिए ही, इन उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए जो सरकार है उसने समाजवाद को अपनाया है। नेक्स्ट है लिबर्टी मतलब स्वतंत्रता। द प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी। ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया हैव बीन ग्रांटेड द फ्रीडम टू चूज देयर ओन वे ऑफ लाइफ। दे आर फ्री टू एक्सप्रेस देयर आइडियाज़ एंड फॉलो देयर बिलीव्स विदाउट फियर। तो हाँ, प्रजातंत्र का एक अटूट भाग होता है स्वतंत्रता का सिद्धांत। जितने भी भारत के जितने भी नागरिक हैं उन सभी को अपने जीवन जीने की स्वतंत्रता है कि वो अपने जीवन को किस तरह जीना चाहते हैं। उन्हें अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने को और जो भी जिस भी चीज़ में उनका विश्वास है उसको फॉलो करने का, इन सब चीज़ों का अधिकार है और इसके लिए उन्हें किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। इक्वालिटी मतलब समानता। All citizens are equal in the eyes of the law. No one is big or small. There can be no discrimination on the basis of caste, religion, sex or wealth. All people have equal status, rights and are entitled to equal opportunities. भारत के जितने नागरिक हैं वो सबके सब कानून की नज़र में एक समान है। कोई भी छोटा या बड़ा नहीं है और किसी के भी साथ जात, धर्म, लिंग या धन के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। सभी लोगों का इक्वल स्टेटस है, समान अधिकार है और सभी को समान मौक़ों का अधिकार है। फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारा, ब्रदरहुड हम जिसे बोलते हैं। इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ ह्यूज कल्चरल डाइवर्सिटी. पीपल ऑफ डिफरेंट रीजन्स हैव देयर ओन ट्रेडिशंस, लैंग्वेजेस, फेथ्स एंड कल्चर्स. इन ऑर्डर टू मेंटेन द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री, अ सेंस ऑफ ब्रदरहुड इज रिक्वायर्ड अमंग द वेरियस ग्रुप्स. Communal feelings have to be suppressed at all costs. Social evils like casteism and untouchability are also to be removed. तो भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे बहुत ज़्यादा सांस्कृतिक विविधताएं हैं। अलग अलग क्षेत्रों
में अलग अलग परंपराएं हैं, भाषाएं हैं, विश्वास है, धर्म है, संस्कृतियां हैं। तो इन सभी में एकता मेंटेन करने के लिए और लोगों में एकता बनाए रखने के लिए, देश में एकता बनाए रखने के लिए एक भाईचारे की भावना हर ग्रुप के बीच में जगाए रखने की ज़रूरत है। जो भी सांप्रदायिक भावनाएं हैं उनको किसी भी कीमत पे कुचलना चाहिए, और जो सामाजिक बुराइयां हैं जैसे जातिवाद या अछूत, इन सब को भी हटाना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर द डे। आज हमने संविधान की प्रस्तावना में दिए हुए जो मुख्य उद्देश्य हैं, शब्द हैं जो हमारे संविधान के मुख्य उद्देश्य को उजागर करते हैं, उनके बारे में पढ़ा एंड समझा। आप लोग भी पढ़िएगा, समझिएगा, और कोई भी प्रॉब्लम होती है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू। आगे हम लॉस वगैरह के बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।